हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। नाउ इन दिस प्रेजेंटेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द समरी ऑफ दिस पोएम that we discussed in our previous lecture, that is the solitary reaper. Now we are going to talk about the summary of the solitary reaper. So I think most of the things are clear because we have discussed the poem line by line and word by word. So the summary, I think you can write on your own, but still I am going to give you the summary of this poem. So when we are talking about summary of the poem The Solitary Reaper, so we know that in this poem the poet is talking about a girl who is lonely in the field, and she is singing a sad song while she was harvesting her crop. And poet want us that we should stop and listen the song, or we should gently pass. So we can stop there and we can listen the song, or simply we can pass. So this is what actually poet is describing here, that a lonely girl is working in a field. She is reaping her crop and she is singing a song which may be a sad song. This is what a poet guess, and poet suggests that if we want to listen her song, then we have to stop and we have to simply listen that, or if we don't want, so we should not disturb her and we should gently pass from there. So we should not disturb her. This is what poet is emphasizing. So this is the scene what he is describing here, that a lonely girl is working in a field in Scotland. So this poem is set in Scotland, we know that. तो स्टूडेंट देखिए, अब हम यहाँ पे हिंदी में समझाएंगे थोड़ा। देखिए, आई विल एक्सप्लेन ऑल द प्रेजेंटेशंस फर्स्टली इन इंग्लिश एंड देन इन हिंदी। सो वी नो, हम जानते हैं कि इस पोएम में क्या है। पोएट कहीं से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि किसी खेत में एक लड़की जो है, पहाड़ों से वो गुजर रहे थे, उन्होंने देखा किसी खेत में एक लड़की जो है अकेले काम कर रही है, गाना गा रही है और बहुत अच्छा गाना वो गा रही है। तो पोएट उसको दूर से खड़े होकर उसके गाने को सुनते हैं। पोएट को उसका गाना बहुत अच्छा लगता है, उसका सुर ताल बहुत अच्छा लगता है उनको। तो पोएट कहते हैं कि भाई खड़े हो और उसके गाने को खड़े होकर सुनो, देखो कितना अच्छा गा रही है वो, और वो अपना खेती का काम भी कर रही है साथ में, तो खुद में ही मस्त है, मतलब गा रही है, मगन है अपने काम में वो। तो पोएट कहते हैं कि भाई अगर खड़े होकर सुनना है तो सुनो, नहीं तो फिर चुपचाप यहाँ से गुजर जाओ, मतलब चुपचाप यहाँ से आगे बढ़ जाओ। तो यही पोएट इसमें कहते हैं कि जो अकेली लड़की खेत में काम कर रही है उसको डिस्टर्ब मत करो। वो जितना अच्छा गाना गा रही है उसको अगर देखना है, मतलब उसको अगर सुनना है तो खड़े होकर आप सुनिए, अदरवाइज आप चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाइए। In the next point, we know that poet also says that nightingale and cuckoo bird may have not sung a song beautiful than this. So poet is describing here the beauty of the song. He says that neither nightingale nor cuckoo bird have sung a song for the travelers, those who travel from one place to other. So he has described all the places in the poem that I have discussed earlier. If you go through the previous presentation, everything will be very clear. So here actually I want to make clear as a very brief summary that poet also describes that her song is more beautiful than the cuckoo or nightingale bird. This is what actually he is emphasizing here, that her song, the melody of the song, tone of the song is very good. So he says that she is singing a very beautiful song. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं कि भाई जो लड़की बहुत अच्छा गाना गा रही है, इतना अच्छा गाना गा रही है भाई, इतना अच्छा गाना तो कुक्कू बर्ड या नाइटिंगेल बर्ड भी मतलब इतना सुरीला गाना नहीं गाते। मतलब गाना इतना सुरीला है, इस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना अच्छा गाना तो नाइटिंगेल और कुक्कू बर्ड भी नहीं गाते होंगे जितना अच्छा गाना ये लड़की वहाँ पे गा रही है और खेतों में अपना काम कर रही है। तो इस तरह से उन्होंने कंपैरिजन भी यहाँ पे किया है कि बहुत ही अच्छा गाना वो लड़की गा रही है। ठीक है, तो yes, next point we have, poet says that her song breaks the silence of the valley. So poet also says that her song is very sweet and her song is the only thing which is breaking the silence of the valley, and this valley is actually overflowing with that song. So this is what here he is using a device called hyperbole. So how a valley can be overflowing with a song. So he wants to just emphasize the fact that her song is very beautiful. So he is using hyperbole here.
a literary device or a poetic device he has used here, that her song is overflowing the valley, and her song is the only one thing which breaks the silence of the valley. This is what poet actually describes here. So students, अब यहाँ पे जानेंगे कि पोएट क्या कहता है कि भाई यहाँ पे जो वो सॉन्ग है, लड़की जो गा रही है, उस सॉन्ग से ही इस मतलब घाटी की पूरी शांति जो है भंग हो रही है। मतलब यहाँ पे और कोई फालतू आवाज़ नहीं आ रही, बस उसका सॉन्ग ही मतलब पूरी घाटी में गूंज रहा है। तो पोएट यही कहना चाहते हैं कि उसका सॉन्ग इतना अच्छा है, इतना सुरीला है कि पूरी घाटी को उसने, पूरी घाटी में वो छा गया है, पहाड़ियों में गूंज रहा है, इको कर रहा है। यही पोएट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि वो लड़की इतना अच्छा गाना गा रही है कि पूरी जो आसपास का एरिया पूरा उसके गाने से भर गया है, गूंज रहा है या छा गया है, या वहाँ की पूरी शांति को उसका गाना ही भंग कर रहा है बस। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, पोएट इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द सॉन्ग एंड इट्स थीम. One more thing is very clear he makes in the poem, that he is not able to identify the song and he is not able to get the theme. He just guesses. He just makes some guess about the theme, that this could be the theme of the song or that could be the theme of the song. So here it is also very clear that he don't know the theme and he is not able to identify the words of the song. So it is incomprehensible. He cannot comprehend that. So he is not able to actually understand that song. So he is not able to get the words, he is not able to get the theme. तो पोएट देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मतलब वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता है कि क्या गाना है, क्या है, वो समझ नहीं पा रहा है, उसकी थीम नहीं समझ पा रहा है। पोएम पोएम मतलब उसके गाने को वो जो है, पोएट जो है उसकी थीम को नहीं समझ पा रहा है, उसके वर्ड्स को नहीं समझ पा रहा है। बस उसका सुर इतना अच्छा लग रहा है, उसका सुर ताल इतना अच्छा लग रहा है उसको कि वो रुक गया और उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया है और उसके गाने को खड़े होकर सुनने लगता है। Yes, these points are very clear. Now next point we have, poet makes a guess that the song is about some war or some sufferings which she has gone through, or maybe that she may be expecting to be going through some suffering. So poet is actually making a guess that this song may be related to some war, some loss, some pain, some sufferings which she has gone through, and or maybe some sufferings which she is expecting to come to her, or maybe some pains which she expects to come. So he is making a guess. The poet is actually making a guess that what this song is related to actually. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पोएट मतलब गेस करते हैं, एक अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई कोई लड़ाई, कुछ युद्ध हुआ होगा, उसमें कुछ नुकसान हुआ होगा, या उसको कोई दुख हुआ होगा, या उसने कुछ परेशानी कुछ आने वाली है भविष्य में, उसको ऐसा लग रहा है, तो अपने दुख को व्यक्त करने के लिए वो इस तरह का गाना गा रही है। तो उनका कहने का मतलब है कि ये सैड सॉन्ग भी हो सकता है, या कोई मतलब नॉर्मल डे टू डे लाइफ का भी कोई सॉन्ग हो सकता है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होते रहते हैं, उससे रिलेटेड कोई सॉन्ग हो सकता है, या सैड सॉन्ग हो सकता है, या किसी पेन से संबंधित हो सकता है। तो पोएट यहाँ पे बस क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गेस करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये सॉन्ग किससे संबंधित होगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे एकदम क्लियर है कि वो गेस कर रहे हैं। एंड लास्टली द पोएट सेज दैट द पोएट एक्सेप्ट्स दैट द सॉन्ग हैज चेंज्ड his heart and mind, and it is going to live in his heart, and its effect is very powerful on poet. So in the last stanza, poet accepts that this song has changed his heart, his mind. This song is actually now living in his heart, and its effect is very powerful on poet. His heart and mind has changed, and when he leaves that place, still he can hear that song in his heart, in his mind, though he's not able to hear that song physically, but he can feel that song. He can feel the melody, the sweetness, the beauty of the song in his heart, in his mind. So actually he has taken that song in his heart, though he left the place, but he has taken that song, that sweetness of the song, that beauty of the song in his heart. He has taken that beauty of the song. This is what poet is explaining in the last stanza.
तो स्टूडेंट्स देखिए, आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि लास्ट में वो एक्सेप्ट करते हैं कि सॉन्ग की वजह से उनका दिल दिमाग बहुत बदल गया, उनके दिल में गाना छा गया, दिमाग में बस गया उनके गाना, और ही उनके दिल में गाना बस गया और वहाँ से वो चले गए, फिर भी उनके दिल दिमाग में गाना छाया हुआ है, और इसका इफेक्ट बहुत पावरफुल है पोइट के ऊपर। तो लास्ट में पोइट यही कहते हैं कि भाई वो वहाँ से चले तो गए, लेकिन वो गाना अभी भी उनके दिल में ही उनके साथ है, यानी कि वो जगह तो छूट गई, लेकिन वहाँ से वो क्या लेकर जा रहे हैं, अपने दिल और दिमाग में उस गाने की छाप लेके जा रहे हैं, उस गाने को लेके जा रहे हैं, उस गाने की सुंदरता को अपने दिल दिमाग में लेके जा रहे हैं। यही पोइट लास्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वेरी brief summary, and it's better to go through my previous presentation. More detailed summary you can then write if you go through my previous presentation about description of the poem, that explanation of the poem. If you go through the explanation of the poem, then that is more good for you. तो स्टूडेंट्स, ये समरी शॉर्ट में आपको बता दिए, लेकिन आप इससे पहले का जो प्रेजेंटेशन है उसमें पोएम को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको आप समझ लीजिए, देख लीजिए, तो समरी थीम सब कुछ क्लियर हो जाएगी उसी में आपको। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स की थीम, कि भाई थीम क्या है, इसमें पोएम किस चीज़ से संबंधित है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं, सो वी कैन सी दैट व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। द ब्यूटी ऑफ द सॉन्ग इज देयर थीम, सॉरो ऑफ द गर्ल इज अ थीम, girls relationship with girls relationship with nature is a theme, and loneliness of the girl is a theme. So all these themes we can find here. So students, first of all I will explain that how beauty of song is a thing. That we see that the beauty of song is such that poet is quite impressed by the melody of the song, beauty of the song, that he has taken away the song with him in his heart. So here simply the poet is trying to describe the beauty of the song, that it is so beautiful, it has good experience, good effect on poet's mind, poet's heart. So beauty of the song is a very obvious theme. Next theme we have sorrow of the girl. The girl is lonely, and she is singing the song, so that song is somehow depicting her sorrow, sadness of the girl, because she is solitary, nobody is with her, why she is working alone in the field. She is singing a song that seems to be very sad. So here we can find that somewhere we can see that the girl is alone, the girl is sorrow. So loneliness also, there is a theme of loneliness of the girl. Girl is loneliness and girl is sorrow. That girl is alone, solitary, and that girl is sad also. These are the themes. And girl is having only relationship with nature, because she is in nature and she is working in nature. So we can see that she is related to nature. She can sing the song to nature. She is singing the song to nature actually. So here we see that there is a relationship of girl with the nature. So these are the main themes that we find in this poem. That beauty of the song is emphasized, and some sadness which is related to the girl is emphasized, loneliness of the girl is emphasized, and girl's relationship with nature is also emphasized. तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे जब हम थीम की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि भाई सॉन्ग की सुंदरता, जो गाना वो गा रही है उसकी ब्यूटी के बारे में बात हो रही है, उसकी ब्यूटी बहुत अच्छी है, पोएट उस गाने को अपने दिल में लेके जाते हैं, अपने दिमाग में उनके बस जाता है वो। तो एक जो मेन थीम हो जाती है वो हो गई ब्यूटी ऑफ सॉन्ग। दूसरी हो गई सॉरो ऑफ द गर्ल। भाई गर्ल बहुत दुखी होती है, कोई ना कोई दुखी गाना गा रही थी, कुछ ना कुछ उसके दिल में दुख है, और वो अकेली भी है, देखिए अकेलापन भी है उसका। और सबसे बड़ी चीज़ एक और है कि गर्ल का रिलेशनशिप है नेचर के साथ, कि वो प्रकृति के साथ जुड़ी है, प्रकृति की गोद में है, वहाँ पे अपना काम कर रही है, गाना गा रही है, प्रकृति पेड़ पौधे पक्षी सब उसका गाना सुन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गर्ल जो है वो नेचर में है, नेचर उसके साथ है बस। लोनलीनेस तो है, कोई इंसान नहीं है उसके साथ, लेकिन प्रकृति के साथ उसका नेचर है, और अपना गाना शायद प्रकृति के साथ ही शेयर कर रही है, क्या ऐसा कुछ है। तो वो मस्त है, मतलब अपना प्रकृति के साथ ही गा रही है, अपने दुख को शेयर कर रही है, अपनी खुशियों को शेयर कर रही होगी, क्या पता क्या शेयर कर रही है, क्योंकि पोएट को पता तो है नहीं वो क्या गा रही है, समझ नहीं पा रहा है। तो ये हो गया। देखिए, और लड़की अकेली है, अकेले ही काम कर रही है, काट रही है, बांध रही है फसल को, सब कुछ कर रही है, तो अकेली, उसका अकेलापन भी है कहीं ना कहीं, तो वो भी एक दुख है, भाई आदमी अकेला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ब्यूटी ऑफ सॉन्ग एक इसकी थीम हो जाएगी, सॉरो ऑफ द गर्ल इसकी एक थीम हो जाएगी, और गर्ल का जो रिलेशनशिप है नेचर के साथ वो इसकी एक थीम हो जाएगी, और
लोनलीनेस ऑफ गर्ल, गर्ल का लड़की का अकेलापन, वो भी इसकी एक थीम हो जाएगी। तो ये थीम हमने डिस्कस कर ली। अब क्रिटिकली एनालिसिस में इसके हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जो भी इसकी लिटरेरी डिवाइसेस हैं और इसका फॉर्म वगैरह सब डिस्कस करेंगे। तो पहले हम क्रिटिकल एनालिसिस में जान लेते हैं कि पोएम क्या है, क्या रही है। भाई जो पोएम है, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिटिकल एनालिसिस, द पोएम टॉक्स अबाउट द रस्टिक लाइफ एंड इट्स पायनेंट ब्यूटी। जो इसकी रस्टिक लाइफ है और इसकी जो ब्यूटी है, जो बहुत ही मतलब अलग है, डिफरेंट है काफ़ी, बहुत मतलब दिल को टच कर रही है। ठीक है, तो ये मतलब उसके बारे में पूरा ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो रस्टिक लाइफ और उसकी पायनेंट ब्यूटी को प्रेजेंट कर रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं ये। ठीक है, सो पोएट इज ट्राइंग टू प्रेजेंट द रस्टिक लाइफ एंड पायनेंट ब्यूटी ऑफ द स्कॉटलैंड, अ विलेज इन स्कॉटलैंड. The poem presents a unique solitude because we don't know what the song is about. So there is a solitude also that I told you earlier. That girl is alone. There is loneliness. Again, she is alone because that song is not understood by the poet. That song the poet cannot understand. So again, she is alone. There is a unique solitude because we don't know what the song is about. So she is alone. We are not able to connect with her. So these are a few points we can see here. And the poet is attracted by sweet song of the girl, and it lasts in heart of poet and give him everlasting bliss. So we see here that the poet is attracted too much towards the sweetness of the song that the girl is singing, and it is going to last in his heart, because he says that when he leaves the place, still the song is there in his heart. So the song is giving the poet a everlasting bliss. So there is a kind of happiness, there is a kind of relaxation the poet is getting. So there is a beauty of song that poet is getting because of the sweetness of the melody of the song. So this is what poet is attracted to. तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कि भाई देखिए, सबसे पहले हम क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो वहाँ पे रस्टिक लाइफ को बताया जा रहा है, मतलब गांव देहात की जो लाइफ होती है उसको बताया जा रहा है। और पोएम जो एक अलग सा सॉलिट्यूड, अकेलापन प्रेजेंट कर रही है, क्योंकि भाई हम गाना सुनते हैं लेकिन फिर भी हम कुछ भी जान नहीं पा रहे हैं उसके बारे में कि वो क्या गाना है, किस बारे में, क्यों गा रही है। तो यहाँ के सॉलिट्यूड है, मतलब अकेलापन, लोनलीनेस कहीं ना कहीं प्रेजेंट की जा रही है। ठीक है, तो पोएट ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है। और पोएट जो है वो अट्रैक्टेड है, बहुत ही मतलब स्वीट सॉन्ग गा रही है गर्ल, इसलिए पोएट सॉन्ग की तरफ अट्रैक्टेड होता है। और वो पोएट उसके दिल में, पोएट के दिल में वो गाना बैठ जाता है और उसको बहुत ही मतलब शांति देता है, खुशी देता है, या कुछ आरामदायक उसके लिए महसूस होता है उसको, मतलब बहुत अच्छा लगता है उसको, उसका दिल दिमाग में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है उस गाने का, और बहुत ही ज़्यादा वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है, गाने की तरफ, गाने की सुंदरता की तरफ। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और ये हो गया क्रिटिकल एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स, हमने थीम जान ली, समरी जान ली। ठीक है, समरी, थीम, क्रिटिकल एनालिसिस, इतना हमने समझ लिया है। और थोड़ा सा भी जो मेन पार्ट है वो लिटरेरी डिवाइसेस एंड फॉर्म, तो ये आई थिंक हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो छोटे छोटे प्रेजेंटेशंस मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ। और स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं कुछ पेड कोर्सेज भी चलाने वाला हूँ, टीजीटी पीजीटी के लिए, नेट के लिए, जीके जीएस के लिए, और मतलब इस तरह से इंग्लिश लिटरेचर के लिए, तो इंग्लिश ग्रामर के लिए चलाने वाला हूँ पेड कोर्सेज में यूट्यूब पे। तो जिसको भी मेरा पेड कोर्स परचेज़ करना हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। हमने एक वहाँ पे ग्रुप बनाया है, वहाँ बहुत सारे बच्चे ऐड हैं, तो हम आपको भी ऐड कर लेंगे, जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है। तो आपको टीजीटी पीजीटी और नेट, इंग्लिश लिटरेचर के लिए फ़ोकस करेंगे और इंग्लिश ग्रामर के लिए भी फोकस करेंगे, जीके जीएस के लिए भी फोकस करेंगे। तो जो जो मतलब रिक्वायरमेंट आएगी उस हिसाब से हम अलग अलग कोर्सेज बना के वहाँ पे डालेंगे। जिन बच्चों को मतलब मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और पैसा कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होगी, बहुत छोटा सा मिनिमम अमाउंट लिया जाएगा आपसे, क्योंकि ये मेनली आपकी हेल्प के लिए बनाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और पढ़ सकें, डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर प्रेजेंटेशन अच्छा लगे तो पढ़िए, समझिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और सभी को वीडियो शेयर करिए। और जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए खूब मेहनत करिए, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको बहुत अच्छा से हेल्प कर सकें और जीवन में आप एक अच्छे इंसान बन सकें।
मैं यहाँ पे आपको कोई बहुत बड़ा वो नहीं, मैं आपको एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। और मेरा मानना ये है कि अगर आप एक अच्छे इंसान बनेंगे तो एक अच्छा करियर आपके पास ज़रूर होगा। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। और यूपी टीजीटी पीजीटी की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं फ़िलहाल हम, पूरा फोकस उसी पे है हमारा। और इंग्लिश ग्रामर भी साथ में हम पढ़ेंगे। तो यूपी टीजीटी पीजीटी का पूरा और नेट का भी पूरा हम सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और लेटेस्ट कोर्सेज़ के लिए मुझे आप और भी कुछ कोर्सेज़ आपको चाहिए तो मैसेज भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और जिसको पेड कोर्स परचेज़ करना है, जिसको कुछ मुझसे ऑनलाइन कोचिंग लेनी है, तो आप मुझे कुछ फ़ी पे करके, बहुत थोड़ी सी फ़ी करनी है, थोड़ी सी फ़ी पे करके आप मुझसे बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। थैंक यू।